So once again, I welcome in the course Irrigation Engineering and very good morning to all of you. So yesterday we have discussed the uh, relationship between the duty and delta, and after that I have discussed what is culturable commanded area and how to compute the culturable commanded area, and then what is the capacity factor, what is intensity of irrigation, and what is time factor, and then with the help of this factor, how to compute the design discharge for a canal. So we have discussed in the last class, that is the relationship between the duty delta. So delta is equal to 8.64 B by D, or delta is equal to 864 B by D, where here is delta in centimeter, here delta in meter. And after that I have discussed that how to compute the uh, design capacity. So design capacity of a canal, design capacity of a canal. So various step I have discussed. Firstly, we have to find the gross commanded area. Second step is culturable commanded area, that is equal to gross commanded area minus unculturable area. And the third point, for different crops we have to find the area, like for different crops the intensity of irrigation, if intensity of irrigation is given, then we can compute the mm, different areas for the different crop, like the for rabi crop, area of rabi crop can be computed, that is equal to intensity of irrigation into culturable commanded area. Similarly, area of kharif crop can be computed as intensity of irrigation of the kharif crop into culturable commanded area. And similarly, area of Z crop, that is equal to intensity of irrigation Z crop into cultivable commanded area. And similarly, area of perennial crop, that is intensity of irrigation of the perennial crop into cultivable commanded area. Once we have computed the area, so and with the help of this delta, we can compute the duty. So step 4, duty can be computed as duty of the rabi crop, that is equal to 8.64 base period of the rabi crop divided by a delta of the rabi crop. And similarly we can compute the duty of kharif crop, duty of z crop, and duty of perennial crop. So step 5, we can compute the average discharge. So average discharge, that is equal to q average for the rabi crop, that is equal to area of the rabi crop divided by duty of the rabi crop. And similarly the uh, average value of discharge for the kharif crop, average value of z crop, and average value of discharge for the perennial crop can be computed. Now we have to find the different combination for the final average value. So discharge average discharge, that is equal to maximum of different combination, like average value of rabi crop plus perennial crop, average value of discharge for the kharif crop plus average discharge for the perennial crop, average value of z crop plus perennial crop. So whichever is the maximum value we have to take. Then step 7, we have to find the design discharge. So design discharge can be computed as q design, that is equal to q average value of the discharge. So average value q average divided by capacity factor into time factor. Capacity factor into time factor.
and if special case, if the canal losses, if canal losses that is equal to CL and field losses are given, field losses that is FL, then design discharge can be computed as that is equal to Q dash design, that is equal to Q design divided by 1 minus canal losses into 1 minus field losses, or we can write or Q design divided by efficiency of the canal losses into efficiency of the field losses. उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक नोट कि अगर एक नोट में बताया था कि if two crops have same season, देन जो आप उसका एवरेज डिस्चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ Q1 प्लस Q2. डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट क्रॉप, डिस्चार्ज ऑफ फर्स्ट क्रॉप and the discharge of second crop for the same season, तो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी इस पे. तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है आज इस ड्यूटी डेल्टा पे और वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स पे. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2008. For the data given in table and taking core depth and core period for wheat are 13.5 centimeter and 4 weeks respectively. जो आपका कोर डेप्थ और कोर पीरियड है जो दिया हुआ है वीट के लिए that is 13.5 centimeter and 4 weeks and for the rice the core depth and core period is 19 centimeter and 2.5 weeks respectively. We have to find the average discharge requirement and peak demand. दोनों हमें निकालना है. और ये क्रॉप का जो है एरिया दिया हुआ है, आपका टोटल डेप्थ जो दिया हुआ है, बेस पीरियड दिया हुआ है और एवरेज ड्यूटी दी हुई है. तो मैंने एक टर्म बताया था कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने वाटरिंग किया तो हमने क्या बताया था कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्चार्ज दिया जाता है किस ड्यूरेशन में, जब हमारा जो है जो क्रॉप हो जाए फ्यू सेंटीमीटर ग्रो हो जाए, मतलब कि कोर पीरियड में. जैसे कोर पीरियड के बाद जो होता है, कोर पीरियड के बाद जो फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, व्हेन आवर क्रॉप जो है वो फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाए 2 to 5 सेंटीमीटर, वहां की डिस्चार्ज जो होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, वो पीक डिमांड है. मतलब कि जो हमने कोर डेप्थ और कोर पीरियड से जो निकालूंगा मैं डिस्चार्ज, वो हमारा जो होगा वो हमारा पीक डिमांड होगा. और एवरेज वैल्यू जो है ये हम इससे निकाले. तो सबसे पहले हम लोग सारा चीज निकाल लेते हैं. तो एवरेज पहले डिस्चार्ज निकाल लेते हैं. तो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज डिस्चार्ज हमारे पास दो तरह का ये है क्रॉप है, एक वीट है और राइस है. एक है हमारा वीट और राइस. आपका जो एरिया जो है कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो है वही आपका है 5000 और 25 आपका जो है वो 5000 हेक्टेयर, और इसके लिए जो है वो 2500 राइस के लिए है हेक्टेयर. उसी तरह आपका जो है वो टोटल डेप्थ, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो दी हुई है, डेल्टा जो है आपका कितना है, डेल्टा जो है वो आपका 37.5 एंड 120, 37.5 सेंटीमीटर और ये जो है हमारा 120 सेंटीमीटर है. उसी तरह आपका बेस पीरियड जो है 140 120, बेस पीरियड जो है 140 डेज और दिस इज फॉर 120 डेज. और एवरेज ड्यूटी की वैल्यू जो है, ड्यूटी जो है वो कितना है, तो ये आपका 3225.6 हेक्टेयर पर क्यूमेक. और जो राइस के लिए आपका 864 ड्यूटी की वैल्यू जो है 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक. तो यहाँ से सबसे पहले तो आप ड्यूटी दिया हुआ है तो आप यहाँ से आप निकाल लो क्या निकालना है. तो हमें यहाँ पर डिस्चार्ज निकाल सकते हैं. लेट QW बी द डिस्चार्ज फॉर वीट. तो QW जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ द वीट डिवाइडेड बाय ड्यूटी, एवरेज ड्यूटी. तो यहाँ से एवरेज डिस्चार्ज जो है हम लोग निकाल सकते हैं. तो कितना हो जाएगा, एरिया जो है वो कितना है 5000 डिवाइडेड बाई आपका 3225.6. तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 3225.6. तो दिस इज कमिंग 1.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड.
1.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसी तरह अगर हम लोग राइस का निकालो तो लेट एवरेज डिस्चार्ज फॉर द राइस जो है वो क्या हो जाएगा, ए आर डिवाइडेड बाई डी आर। तो यहाँ से एरिया कितना है 2500 डिवाइडेड बाई ड्यूटी जो है वो 864। तो यहाँ से कितना आ गया 2500 डिवाइडेड बाई 864। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 2.89। ये जो है हमारा 2.89 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब दोनों अलग अलग सीजन के क्रॉप्स हैं, तो यहाँ पे जो एवरेज डिस्चार्ज जो हो जाएगा, एवरेज डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ किसका, व्हीट और राइस। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपको वही आपको सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम कितना है 2.89। सो आपका यहाँ से एवरेज डिस्चार्ज जो आ गया 2.89 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें निकालना है कि पीक डिमांड क्या होना। तो मैंने पहले ही बोला है कि बार बार कि जैसे हम लोग फर्स्ट वाटरिंग करते हैं कोर पीरियड के दौरान, तो वहां पे हमारा पीक डिमांड होगा। तो जो कोर डेप्थ है और कोर पीरियड से हम लोग जो डिस्चार्ज निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर व्हीट अगर और फॉर राइस के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे फिर से फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीक डिस्चार्ज या पीक डिमांड, तो यहाँ पे आपका फिर से व्हीट और राइस दो क्रॉप्स है आपके, एक रबी और एक खरीफ। यहाँ पे आपका देखो कोर डेप्थ और कोर पीरियड आपका अलग अलग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोर डेप्थ और कोर पीरियड कितना कितना है, तो आपके व्हीट के लिए जो है कोर डेप्थ 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, और ये 4 वीक है, मतलब कि 28 डेज। वीक को हमने डे में कन्वर्ट कर दिया। और उसी तरह फॉर दी राइस जो है वो 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। और जो है आपका कितना वीक है, तो आपका हो गया 2.5 वीक। तो 2.5 इंटू 7 तो 17.5 डेज। ये जो हो गया आपका 17.5 डेज। अब यहाँ से हम लोग ड्यूटी निकाल लेते हैं पहले। ड्यूटी, तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, वीट का ड्यूटी क्या हो जाएगा, लेट कैपिटल डी डब्ल्यू बी द ड्यूटी ऑफ द वीट। सो दैट इज इक्वल टू 8.64 पी बाई डेल्टा वीट का और डेल्टा वी वीट का। सो कितना हो जाएगा 8.64। आपका वीट का बेस पीरियड जो है वो कितना है 28 डेज। सो 28 डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है 13.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ मीटर में करेंगे तो 13.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर में। तो ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा आपको कितना आ गया 8.64 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई 13.5। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 1792 हेक्टेयर पर क्यूबिक, 1792 हेक्टेयर पर क्यूबिक। उसी तरह अगर हम लोग ड्यूटी जो है वो राइस की निकाल लें तो राइस की कितनी हो जाएगी 8.64 बेस पीरियड ऑफ राइस डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ राइस। तो ये हो जाएगा आपका 8.64 बेस पीरियड जो राइस की है वो कितनी है, तो बेस पीरियड जो है आपकी राइस की दैट इज 17.5। तो यहाँ से आ गया 17.5 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू राइस की कितनी है 19 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा 0.19। तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी, दिस वैल्यू इज कमिंग 8.64 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाई 0.19। तो दिस इज कमिंग 795.8 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो वी हैव कंप्यूटेड द ड्यूटी फॉर द व्हीट एंड राइस। तो यहाँ से फिर से हम लोग जो डिस्चार्ज है वो निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्यू डब्ल्यू जो हो जाएगा वो ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ व्हीट। एरिया व्हीट का कितना है, तो वो है आपका 5000। सो 5000 डिवाइडेड बाई 1792। तो ये वैल्यू जो आ गया 5000 डिवाइडेड बाई 1792। तो ये वैल्यू जो आ गई 2.79 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड सिमिलरली क्यू जो है आपका राइस के लिए जो आ जाएगा वो एरिया अंडर द राइस डिवाइडेड बाय ड्यूटी ऑफ राइस। तो एरिया कितना है ये 2500 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय 795.8। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आ गई 2500 डिवाइडेड बाय 795.8। तो ये वैल्यू जो आ गई 3.14 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो यहाँ से पीक डिमांड जो हो गया वो क्या हो गया, पीक डिमांड आपका पीक डिस्चार्ज या पीक जो है एवरेज डिस्चार्ज और पीक डिमांड जो हो गया वो कितना हो गया, तो दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम वैल्यू, सो मैक्सिमम ऑफ क्यू डब्ल्यू और क्यू आर, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 3.14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही दोनों पार्ट क्वेश्चन में पूछा था कि कंप्यूट द एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट एंड पीक डिमांड। तो पीक डिमांड जो हो गई वो कितनी हो गई, जो दैट इज इक्वल टू 3.14, और एवरेज डिस्चार्ज जो हो गया जिसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे दैट इज इक्वल टू 2.89 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2011 EAC। Determine the discharge of a distributary at tail end from the following data. Gross commanded area is given, that is 20,000 hectare. Culturable command area जो है वो 70% of the GCA, and loss beyond the tail end जो है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। आपका लॉस भी इतना हो रहा है, मतलब कि जो आप डिजाइन डिस्चार्ज निकालोगे उसमें इस लॉस को ऐड करोगे उतना आपको प्रोवाइड करना होगा, बिकॉज आपने मान लो कि लेटेस्ट एज्यूम जो आपका डिस्चार्ज आया है दैट यू हैव कंप्यूटेड दैट इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो अगर आपने 2 मीटर के लिए ही अगर आपने डिजाइन कर दिया तो आपको मालूम है कि इसके बाद लॉस होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आपको तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही फिर फील्ड में पहुंचा जो इफेक्टिव हुआ। तो आपको जो डिजाइन करना होगा वो जो आपने कंप्यूट किया है प्लस लॉस को जोड़ करके उतना आपको सप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 क्रॉप्स दिया हुआ है, एक खरीफ क्रॉप है, दूसरा जो है आपका रबी क्रॉप है, और ये शुगर केन मतलब कि ये पेरेनियल क्रॉप है जो दिया हुआ है, और सबकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इंडिविजुअली, कोर डेप्थ और कोर पीरियड दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो इसका हम लोग डिस्चार्ज निकाल लें तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सबसे पहले अलग अलग अगर हम लोग लिखे, सबसे पहले तो खरीफ के लिए अगर खरीफ, तो खरीफ में क्या है आपका जो है सबसे पहले तो आप इससे पहले बिफोर दैट आपको कल्चरेबल कमांड एरिया पहले निकाल लो। कल्चरेबल कमांड एरिया दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 70% ऑफ GCA, 70% ऑफ ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 20,000 हेक्टेयर, बिकॉज द ग्रॉस कमांड एरिया जो है वो 20,000 हेक्टेयर है। तो यहाँ से कल्चरेबल कमांड एरिया जो आ गया आपका 20,000 इंटू पॉइंट, तो दिस वैल्यू इज 14,000 हेक्टेयर। ये आपका जो आ गया ये कितना आ गया 14,000 हेक्टेयर जो है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया है। अब आपको इंडिविजुअली निकाल लीजिए, इंडिविजुअली तो फॉर खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप के लिए देखिए क्या है आपका राइस जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो कितना है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दैट इज गिवन 15%, तो 15% है। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लो खरीफ का AK, दैट इज इक्वल टू 14,000 इंटू 0.15। तो ये वैल्यू जो आ गया 14,000 इंटू 0.15, ये आ गया आपका 2100 हेक्टेयर, 2100 हेक्टेयर। तो यहाँ से आपका ड्यूटी निकाल लीजिए, हम लोग ड्यूटी अगर निकाल लें, कोर डेप्थ दिया हुआ है, कोर पीरियड दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ड्यूटी निकाल लो यहाँ से। तो ड्यूटी ऑफ दी खरीफ क्रॉप दैट इज इक्वल टू 864 बेस पीरियड ऑफ दी खरीफ क्रॉप डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ दी खरीफ क्रॉप। अब यहाँ पे डेल्टा जो है ये सेंटीमीटर में, बिकॉज हमने 864 ले लिया है। मैं दोनों तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंटेंशनली, मैंने पहले 8.64 लिया है तो वहाँ पे डेल्टा मीटर में रखा है, यहाँ पे अगर 864 लिया है तो सेंटीमीटर में रखना होगा। बेस पीरियड कितनी है आपकी इसकी खरीफ की 2.5, मतलब कि 2.5 इंटू 7 दैट इज 17.5 डेज। तो 17.5 यहाँ पे हो गया 17.5 डेज डिवाइडेड बाई डेल्टा, कोर डेप्थ जो है वो कितना है 19 सेंटीमीटर। तो आपको इसको हमने मीटर में नहीं बदला बिकॉज 864 हमने ले लिया है ऑलरेडी। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 864 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाई 19। तो ड्यूटी जो आ गई आपकी ये खरीफ क्रॉप की या खरीफ की बात की जाए तो कितना आ गया 795.79 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्चार्ज निकाल लें खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप की डिस्चार्ज हो जाएगा एरिया ऑफ द खरीफ क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ द खरीफ क्रॉप। तो यहाँ से कितना आ गया 2100 डिवाइडेड बाई 795.79। तो यहाँ से डिस्चार्ज जो आ गई 2100 डिवाइडेड बाई 795.79। So this value is coming 2.64 meter cube
पर सेकेंड। सिमिलरली हमने रबी क्रॉप के लिए निकाल लिया, फिर से सेम प्रोसीजर से फॉर रबी क्रॉप, रबी क्रॉप के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है, वीट के लिए 30%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो आपका जो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दैट इज इक्वल टू 30%। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ रबी क्रॉप दैट इज इक्वल टू जो हो जाएगा एरिया ऑफ रबी क्रॉप जो है, एरिया कितना है, तो एरिया जो हो जाएगा आपका कल्चरेबल एरिया कितना है, कल्चरेबल एरिया इज 14,000। तो 14,000 इंटू 0.3, 14,000 into 0.3. So this value is coming 4,200 हेक्टेयर, 4,200 हेक्टेयर। तो यहाँ से हम लोग ड्यूटी पहले निकाल दें, ड्यूटी ऑफ द रबी क्रॉप, वो कितना हो जाएगा, तो 864 बेस पीरियड ऑफ द रबी क्रॉप डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ द रबी क्रॉप। तो ये हो जाएगा 864 बेस पीरियड कितनी है रबी क्रॉप के लिए, तो बेस पीरियड जो है वो आपका 4 वीक है, मतलब कि 28 डेज, 4 into 7, तो 28 डेज डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा इज 13.5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा जो है वहाँ यहाँ से 13.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आ गई 864 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 13.5, तो ये वैल्यू जो आ गई 1792 हेक्टेयर पर क्यूनेक। तो यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज अगर रबी क्रॉप का निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रबी क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ द रबी क्रॉप। तो एरिया है जो है वो कितना है 4200 डिवाइडेड बाई 1792। तो यहाँ से आपका आ गया 4200 डिवाइडेड बाई 1792। दिस वैल्यू इज कमिंग 2.34 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसी तरह अगर हमने पेरेनियल क्रॉप के लिए निकाल दिया, मतलब शुगर केन के लिए, तो फॉर शुगर केन या अगर पेरेनियल क्रॉप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है शुगर केन के लिए कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो इट इज गिवन 10%। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया ऑफ पेरेनियल क्रॉप जो निकाल दें वो कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 10%, मतलब कि 0.1 इंटू 14,000। आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है 14,000। सो यहाँ से आपका आ गया दैट इज इक्वल टू 1400 हेक्टेयर। और आप ड्यूटी निकाल लो, ड्यूटी ऑफ द पेरेनियल क्रॉप दैट इज इक्वल टू 864 बेस पीरियड ऑफ द पेरेनियल क्रॉप या शुगर केन डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ द पेरेनियल क्रॉप इन सेंटीमीटर। सो 864 इंटू बेस पीरियड फॉर द शुगर केन इज 4 वीक, सो 4 वीक मीन्स 28 डेज, 28 डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में 16.5 सेंटीमीटर, तो 16.5 सेंटीमीटर। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 864 into 28 divided by 16.5. So this is coming 1466.18 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्चार्ज निकाल दें पेरेनियल क्रॉप का, तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द पेरेनियल क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ द पेरेनियल क्रॉप। सो ये कितना हो जाएगा, एरिया जो है वो कितना है 1400 डिवाइडेड बाई 1466.18। तो यहाँ से कितना आ गया 1400 डिवाइडेड बाई 1466.18, 0.95 या 0.96 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो हमारा एवरेज डिस्चार्ज जो हो जाएगा, जो आपका क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 3 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। पहला जो क्या है आपका खरीफ क्रॉप प्लस पेरेनियल क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप प्लस पेरेनियल क्रॉप। तो यहाँ पे हम आपका जो है 2 कॉम्बिनेशन बना। तो खरीफ क्रॉप के लिए आपने निकाला है डिस्चार्ज कितना, खरीफ क्रॉप के लिए जो है वो 2.64। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो मैक्सिमम ऑफ 2.64 प्लस 0.96, और यहाँ पे जो आपका रबी क्रॉप के लिए जो आया है डिस्चार्ज वो कितना आया है 2.34। तो 2.34 प्लस 0.96, कौन सी वैल्यू हम लोग लेंगे, ये वाला वैल्यू 2.64 प्लस मैक्सिमम वैल्यू जो है 2.64 प्लस 0.96। तो ये वैल्यू जो आ गई वो 3.6, मतलब जो हमारा वैल्यू जो आया है वो 3.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज। अब हमें जो डिजाइन करना है तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 3.6 प्लस हमारा जो लॉस है, आपका लॉस भी है 1 मीटर क्यूब, आपका जो लॉस है वो भी कंसीडर करोगे तो डिजाइन डिस्चार्ज जो हो जाएगा, डिजाइन डिस्चार्ज जो बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द डिस्चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी एट द एंड ऑफ टेल एंड। सो डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटरी at the tail end, that is equal to आपका जो डिस्चार्ज आपने निकाला है 3.6 प्लस लॉसेस, लॉस जो हुआ है वो कितना है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। सो दैट इज इक्वल टू 4.6 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए आपको डिजाइन करना होगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने AKU एग्जाम से लिया है 2016 में, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन। A channel is to be designed for irrigating 5,000 hectare in खरीफ crop and 4,000 hectare in रबी crop। आपका एरिया जो है यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है, जो आपका है एरिया फॉर दी खरीफ क्रॉप दैट इज इक्वल टू 5,000 हेक्टेयर, और एरिया फॉर दी रबी क्रॉप, आर मतलब रबी लिख रहा हूं मैं, 4,000 हेक्टेयर। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर खरीफ एंड रबी ईयर, आपको डेल्टा की वैल्यू जो है वो खरीफ के लिए, द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर खरीफ दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और डेल्टा जो है वो रबी के लिए जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। द कोर पीरियड जो है वो दिया हुआ है आपका, कोर पीरियड जो है वो कितना है, कोर पीरियड जो है वो खरीफ के लिए जो है 3 वीक्स, मतलब 3 वीक्स मतलब कि 21 डेज, और कोर पीरियड जो है आपके रबी के लिए जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 वीक्स मतलब कि 28 डेज। सो डिटरमाइन द डिस्चार्ज, फिर से वही चीज है, आपको डिस्चार्ज निकालना है, दो अलग अलग क्रॉप्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फिर से आप निकाल दो। सबसे पहले तो ड्यूटी, लेट टीके बी द ड्यूटी ऑफ खरीफ क्रॉप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डीके जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8.64 पीके डिवाइडेड बाई डेल्टा के, या तो 864 बीके बाई डेल्टा के। तो यहाँ पे आपका ये मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में, 864 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 21 डेज, तो 21 डिवाइडेड बाई डेल्टा जो है खरीफ क्रॉप के लिए कितना है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपका ड्यूटी जो आ गया वो खरीफ क्रॉप के लिए कितना आ गया, 864 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 60। So this value is coming 302.4 हेक्टेयर पर क्यूमिक। तो यहाँ से हम लोग लेट क्यूके बी द डिस्चार्ज ऑफ खरीफ क्रॉप। तो क्यूके क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द खरीफ क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ खरीफ क्रॉप। यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ पे देखिए ड्यूटी की वैल्यू सही निकाला है मैंने, 864 इंटू 21 डेज डिवाइडेड बाई 60, 302.4 हेक्टेयर। ओके, सो यहाँ पे एरिया जो है वो कितना है 5,000 हेक्टेयर। सो 5,000 अगर यहाँ पे रखा जाए तो 5,000 हेक्टेयर डिवाइडेड बाई 302.4, so this value is coming 5,000 divided by 302.4, so this value is coming 16.53 meter cube per second. Similarly for the rabi crop, so let dr be the duty of rabi crop। तो यहाँ से ड्यूटी निकाल लीजिए, रबी क्रॉप का कितना हो जाएगा 864 बेस पीरियड ऑफ रबी क्रॉप डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ द रबी क्रॉप। तो यहाँ से 864 इंटू ये वाला जो वैल्यू है वो 28 डिवाइडेड बाई डेल्टा की वैल्यू जो है वो 25। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो आ गई 864 इंटू 28 divided by 25, so it is coming
966.68, 967.68 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो यहाँ से लेट क्यू आर बी द डिस्चार्ज फॉर रबी क्रॉप। तो यहाँ से क्यू आर कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ द रबी क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ द रबी क्रॉप। तो ड्यूटी कितनी है, ड्यूटी जो अभी हमने निकाला है, तो ड्यूटी ऑफ द रबी क्रॉप, एरिया जो है वो कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4000। तो 4000 डिवाइडेड बाई 966.68। so this value is coming 4000 divided by 967.68, so it is coming 4.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा जो हो जाएगा डिजाइन एवरेज डिस्चार्ज जो हो जाएगा, क्यू की वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या, दीज आर द टू डिफरेंट सीजन क्रॉप, तो वो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ किसका, तो हमारा जो हो जाएगा खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, इसके बीच के मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 16.53 है और ये 4.13। सो हमारा जो डिजाइन डिस्चार्ज हो जाएगा वो 16.53 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे कैपेसिटी फैक्टर टाइम फैक्टर कुछ है नहीं। सो आपका जो हो जाएगा डिस्चार्ज फॉर द चैनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका 16.53। लास्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर द टुडे सेशन जो है वो आपका गेट 1992, जब कन्वेंशनल पेपर होता था गेट के एग्जाम में, उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द बेस पीरियड ड्यूटी एट फील्ड एंड एरियाज टू बी इरिगेटेड फॉर वेरियस क्रॉप्स अंडर ए रिजर्वायर आर गिवन बिलो। 4 तरह का क्रॉप्स है, व्हीट, राइस, शुगर केन एंड वेजिटेबल। अगर आपकी बात की जाए तो ये रबी, खरीफ, पेरेनियल और जैद, चारों क्रॉप आपका दिया हुआ है, जिसकी बेस पीरियड जो है वो अलग अलग दी हुई है, ड्यूटी जो है वो फील्ड पे दी हुई है और एरिया दी हुई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द रिजर्वायर कैपेसिटी इन हेक्टेयर मीटर्स। आपको रिजर्वायर कैपेसिटी हेक्टेयर मीटर्स में निकालना है। इफ द कैनाल लॉसेज आर 18% एंड रिजर्वायर लॉसेज आर 10%। जब कैनाल लॉसेज जो है वो 18% है और रिजर्वायर लॉसेज जो है वो 10% है, तो आपको क्या है रिजर्वायर कैपेसिटी, मतलब कि आप सबसे पहले तो एरिया है ही मालूम है और आपको ड्यूटी भी मालूम है, तो आप क्या करो अलग अलग क्रॉप का अलग अलग निकाल दो। तो सबसे पहले रिजर्वायर कैपेसिटी, तो सबसे पहले इससे हमको डेल्टा निकालना होगा, बिकॉज आपको एरिया इंटू डेल्टा वही हमारा रिजर्वायर कैपेसिटी होगा। तो रिजर्वायर कैपेसिटी अगर लिखा जाए यहाँ पे रिजर्वायर कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू, मैं अगर इंडिविजुअली अगर लिखूं तो अगर यहाँ व्हीट, राइस, शुगर केन और वेजिटेबल है, तो मैं लिखूं अगर तो ए डब्ल्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू प्लस ए आर इंटू डेल्टा आर प्लस ए एस इंटू डेल्टा एस प्लस ए वी इंटू डेल्टा वी, where W for the wheat, R for the rice, S for the sugarcane and V for the vegetable। so ये हमारा रिजर्वायर कैपेसिटी हो गया। अब सब में जो है आपका एरिया तो दिया हुआ है, हम यहाँ से डेल्टा निकाल ले बिकॉज ड्यूटी दिया हुआ है, तो हम लोग डेल्टा अगर निकाले तो डेल्टा जो है अगर W निकाल ले, डेल्टा W जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 864 P बाई D। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये जो डेल्टा है वो सेंटीमीटर में निकाला जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे एरिया जो है वो 2800, तो 864 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, बेस पीरियड जो है व्हीट के लिए जो है वो 120, तो 120 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम 8.64 ही कर दे रहे हैं बिकॉज हमें मीटर में चाहिए, हेक्टेयर मीटर में पूछा गया है तो मीटर में ही चाहिए। तो 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई ड्यूटी जो है वो कितना है 1700, तो 1700 यहाँ से 1700। सो यहाँ से आपकी डेल्टा की वैल्यू जो आ गई, डेल्टा जो है वो 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 1700, तो दिस वैल्यू इज कमिंग 0.61 मीटर। उसी तरह अगर हम लोग डेल्टा निकाल लें किसकी, राइस के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 8.64 बी डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो ये हो जाएगा 8.64। अगर बेस पीरियड देखा जाए तो बेस पीरियड कितना है राइस के लिए 3200, सो 3200
अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3200 डिवाइडेड बाई ड्यूटी, ड्यूटी की वैल्यू कितनी है, ड्यूटी जो है वो 1000, तो 1000 जो है वो ड्यूटी है आपका। तो यहाँ से आ गया आपका 8.64 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 1000। सो दिस वैल्यू इज कमिंग जो है ये जो वैल्यू आ रहा है आपका बेस पीरियड जो है वो कितना है 8.64। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, बेस पीरियड जो है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे जो आपका बेस पीरियड है वो तो कुछ और ही है ना। बेस पीरियड जो है, आई एम वेरी सॉरी, सो बेस पीरियड जो है यहाँ पे कितना है राइस के लिए, वो 1110 है। सो 8.64 इंटू 1110 डिवाइडेड बाई ड्यूटी, ड्यूटी की वैल्यू कितनी है, ड्यूटी जो है वो 1000 है, ड्यूटी इज 1000, तो ड्यूटी इज 1000। So this value is 8.64 into 1110 divided by 1000। तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो 0.95 मीटर। Similarly, the delta for the sugarcane that is equal to 8.64 base period for the sugarcane and duty for the sugarcane। तो ये भी वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा है, निकालिए, इंडिविजुअली निकालो और बताओ कितना आ रहा है, अलग अलग निकालिए और रिजर्वायर कैपेसिटी बताइए कितना आ रहा है, इसको भी निकालिए। बस कैलकुलेशन है, उसके बाद हम क्या है कैनाल लॉसेज और फील्ड लॉसेज दोनों को हम लोग क्या करेंगे एक साथ ऐड करके और देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, अलग अलग निकालिए, कैलकुलेट करिए सब लोग। अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, देखो कितना आ रहा है। ये वाली वैल्यू जो आई थी वो कितना है 0.95, दिस इज 0.95 मीटर। सिमिलरली अगर शुगर केन के लिए निकाला जाए तो शुगर केन के लिए कितना हो जाएगा 8.64। शुगर केन की बेस पीरियड कितनी है तो 360, तो 360 डिवाइडेड बाई ड्यूटी जो है वो 900, तो 360 डिवाइडेड बाई 900, तो ये वैल्यू जो आ गई 8.64 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 900, तो ये वैल्यू जो आ गई 3.46 मीटर। एंड सिमिलरली फॉर दी अगर वेजिटेबल के लिए भी निकाल लें तो वेजिटेबल के लिए जो हो जाएगा वो 8.64 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है इसके लिए 130 डिवाइडेड बाई 750, तो दिस वैल्यू इज कमिंग 8.64 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 750, तो दिस इज कमिंग 1.497 मतलब 1.5 मीटर। अब जो हम रिजर्वायर कैपेसिटी निकाल सकते हैं तो रिजर्वायर कैपेसिटी विदाउट लॉस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने पहले ही बोला कि एरिया जो है आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो वीट, तो ए डब्ल्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू प्लस राइस का ए आर इंटू डेल्टा आर प्लस ए एस इंटू डेल्टा एस प्लस ए वी इंटू डेल्टा वी। अब जो है एरिया इंडिविजुअली सबका अलग अलग दिया हुआ है 2800, तो 2800 इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.61, तो 0.61 प्लस राइस की कितनी है 3200, तो 3200 इंटू 0.95 प्लस शुगर केन के लिए कितना है, शुगर केन के लिए जो है वो 5000, एरिया जो है 5000, तो 5000 इंटू शुगर केन की हमने निकाली है 3.46, तो 3.46 प्लस आपका वेजिटेबल के लिए जो है एरिया कितना है वो 1500, तो 1500 इंटू 1.5, देखो कितना आ रहा है हेक्टेयर मीटर में इसकी वैल्यू 2800 इंटू 0.61 प्लस 3200
into 0.95 plus 5,000 into 3.46 plus 1,500 into 1.5। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 24298 हेक्टेयर मीटर। सो ये रिजर्वायर कैपेसिटी बिफोर लॉसेस है। अब जो है हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द रिजर्वायर कैपेसिटी इन हेक्टेयर मीटर इफ द कैनाल लॉसेस, दोनों चीज दिया हुआ है। तो रिजर्वायर कैपेसिटी जो हो जाएगा अब कितनी हो जाएगी, तो रिजर्वायर कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू आपका जो हो जाएगा कितना है, तो ये है 24298 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आपका क्या क्या लॉस दिया हुआ है, तो कैनाल लॉसेस और रिजर्वायर लॉसेस दोनों दिया हुआ है। तो 1 माइनस 0.18 इंटू 1 माइनस जो है आपका रिजर्वायर लॉसेस जो है वो 10% है। 0.1 मतलब कि इफिशियंसी जो है इसकी आपका जो हो गया ये 82% और 90%। तो यहाँ से कितनी हो गई वैल्यू 24298 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.18 1 माइनस 0.18 इंटू 0.9। तो ये वैल्यू जो आ गई 32924.12 हेक्टेयर मीटर। दिस इज द रिजर्वायर कैपेसिटी। ओके, तो बताइए यहां तक किसी को डाउट है तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं।